Hello dear students. Now this is the video for the chapter Breathing and Exchange of Gases, class 11. Well, before starting this chapter, let me introduce what are the different topics which we included in this video, that is respiratory organs, mechanism of breathing, exchange of gases, transport of gases, regulation of respiration and disorder of respiratory system. In all the physiological processes like digestion, respiration, circulation, excretion, all the processes beta, the last topic is disorder of that particular system. So here also we will discuss about disorder of respiratory system. Now, tell me, what is respiration? The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. But there is a difference between respiration and breathing. You know that the simply exchange of gases is breathing. Well, it occurs in two stages of inspiration and expiration. हम पढ़ेंगे inhalation process होता है और exhalation process होता है. Class 10 में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं. During inspiration, air enters the lungs from the atmosphere, and during expiration, air leaves the lungs. Now, there's a difference between breathing and respiration. What is breathing, beta? Intake of fresh air and removal of foul air. Jabki what is respiration? It is the oxidation of food to form carbon dioxide, water and energy. So what is the reaction for this cellular respiration? That is C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. So what here is going on? That is to break down glucose molecule to get energy. This is the reaction of respiration. Number 2, breathing is a physical process. As you can see, put your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. Now, how do we breathe? We will discuss in this chapter. But cellular respiration process is a biochemical process. Number 3, no energy is released during breathing क्योंकि वो simple exchange हो रहा है. But during cellular respiration, as I told you the reaction, so ATP is released. Number 4, breathing is extracellular process. Cell के अंदर नहीं हो रहा है. But cellular respiration is intracellular process, right? हमने पढ़ा हुआ है mitochondria is so called as powerhouse of the cell. Why? क्योंकि वहां पर formation हो रहा है ATP का. What is ATP बच्चा? Adenosine triphosphate, which is energy currency. So these are the difference between these two. Now, different animals have different respiratory organs, right? Now, the mechanism of breathing varies in different organisms according to their body structure and habitat. ध्यान रखना, respiratory organ किस पे dependent है, कौन सा होगा, उसका body structure कैसा है और वो किस में रह रहा है, right? Now, अगर हम बात करें organism, simple organism like excuse me, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, तो इनका बॉडी सरफेस जो है वो हेल्प करता है इनके रेस्पिरेशन में. अर्थवॉर्म स्किन से करते हैं. इंसेक्ट्स ट्रैकियल सिस्टम होता है. पाइसेस होते हैं बेटा फिशेस. एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स दे गो बाय गिल्स. एम्फिबियंस एंड मैमल्स, हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? दैट इज लंग्स, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ मैंने नेक्स्ट पिक्चर में कुछ डायग्राम्स डिपिक्ट किए हैं टू शो यू डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. यू कैन सी डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नाउ, बिफोर स्टार्टिंग दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, let me tell you some basic things. Like there are two type of respiration. One is direct respiration, जो कि होता है बच्चा lower invertebrate में. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इंसेक्ट्स का, तो वो डायरेक्ट अपने सरफेस से, क्यूटिकल से वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहलाता है. लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात कर रहे हो आप, तो इनडायरेक्ट में आ जाता है जैसे गिल्स और जैसे आ जाते हैं लंग्स, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जैसे कि हमारे अंदर जिसमें आता है हमारा लंग्स. नाउ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी पार्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे? दैट इज नॉस्ट्रल, नेसल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, नेसोफैरिंक्स, फैरिंक्स, फिर फैरिंक्स रीजन में ग्लॉटिस वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट, जो हमें
प्रोटेक्ट, जो हमारी दोनों पाइप्स को, एयर पाइप को, फूड पाइप को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज ग्लॉटिस। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई, नाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन alveolar duct, and then atria to alveolar sac or alveoli, we can say, right? So in human respiratory system, these are the important parts, these are the parts which form the respiratory system. First of which is nasal chamber, which open into pharynx, which leads to larynx. pharynx के बाद आता है बच्चा larynx. larynx जो होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। बच्चा ये चीज क्लियर कीजिएगा कि पोजीशन कहाँ है, ये हमें बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। एंटीरियर पार्ट आपके जो आगे वाला एरिया है, जहां आपका फेस है बेटा, उस वाले पार्ट को हम वेंट्रल पार्ट कहते हैं, आगे वाले को। पीछे जो बैक वाला पार्ट है उसको हम डॉर्सल पार्ट कहते हैं। माउथ वाले रीजन को हम एंटीरियर कहते हैं, लेग्स वाले रीजन को हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में, ये प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, जिसके अंदर मतलब लैरिंग्स जो है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन मेल्स की, तो जो ये है आई मीन दिस वोकल कॉर्ड जो होती हैं बच्चा, वो थोड़ी सी थिक और शॉर्ट होती हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ये थिन और लॉन्ग होती है। दैट्स वाई द पिच ऑफ फीमेल इज हाई एज कंपेयर टू मेल, राइट। इसके अलावा ह्यूमन मेल्स में वेंट्रल सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज के यहाँ आप अपना गले पे देखिए प्लीज, स्पेशली बॉयज, उनके प्रोट्रूडिंग सा होता है, ये थायराइड कार्टिलेज है बेटा। वेंट्रल सरफेस, अभी मैंने आपको बताया वेंट्रल सरफेस आगे वाले को बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक प्रोट्रूशन सा है, बाहर निकला हुआ है, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। किसी किसी में वो जो दिख रहा है एडम्स एप्पल, वो बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल है, और किसी किसी में थोड़ा सा कम विजिबल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रैकिया। नाउ ट्रैकिया का अगर बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि मिड थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है, इसके अंदर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, किस लिए प्रेजेंट होती हैं? ताकि कोलैप्सिंग ना हो जब कोई एयर ना हो वहां पर, राइट। इसके बाद आता है हमारा ब्रोंकाई, जिसको हमने डिवाइड करा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स, राइट। यहाँ पर भी ध्यान रखना, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब ब्रोंक्यूल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है एक बैग लाइक, एक सैक लाइक, SAC वर्ड याद रखिएगा, बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वेलाई। एल्वेलाई में हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। क्यों होती हैं बच्चा वो फोल्डिंग्स? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज एल्वेलाई इज द सरफेस वेयर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। नाउ हमारे जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, और उन लंग्स का जो आउटर कवरिंग होता है बेटा, डबल लेयर होता है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। सो यहाँ तक आपको स्टोरी, थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई होगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपको पोजीशन का ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर प्लेस है। बच्चा आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह पर ऐसा दे रखा होगा कि 5th थोरेसिस वर्टिब्रे पे प्रेजेंट होता है, या नो 6th थोरेसिस वर्टिब्रे पे प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट दिस वर्टिब्रे, वो अब हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, तो उस चीज को अभी आप भले ही छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद आते हैं हम, दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यू कैन सी दैट इज एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया। पोजीशन देखो बच्चा, प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ दिस लंग्स, एल्वेलाई, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड का क्या काम होता है? किसी भी स्ट्रेस को रोकने का काम करता है। कहीं भी बच्चा फ्लूइड जो प्रेजेंट है वो किस चीज को रोक रहा है? स्ट्रेस को रोक रहा है, राइट। इसके अलावा डायफ्राम जो होता है हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को हम थोरेसिस पार्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। देन इज लंग्स, देन इज रिब्स, देन इज ब्रोंकाई, राइट। सो दीज आर द पार्ट जो हम लोग अभी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
बच्चा एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लंग्स में जहां हार्ट आपको दिखा रखा है, तो लंग्स का अंदर वाला येलो वाला जो पार्ट है जो हार्ट के टच में है, ध्यान से देखिए प्लीज, उसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच? क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व है, वो कर्व किस लिए है? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ हार्ट। ये याद रखिएगा, इसे हम कार्डियक नॉच, NOTCH, कार्डियक नॉच कहते हैं। कई बार ये टर्मिनोलॉजी आती है और बच्चा समझ नहीं पाता कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या। वेल, जो लंग्स हैं वो थोरेसिस चैम्बर में है और एक एयर टाइट चैम्बर बना हुआ है। वो जो थोरेसिस चैम्बर है बेटा, वो कैसा है अगर उसको मैं डिफाइन करूं तो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सली आपको मैंने पोजीशन बता दिया पीछे वाला, तो वहां वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रली अगर आप बात करो तो स्टर्नम प्रेजेंट होती है, बोन का नाम है स्टर्नम। लेटरली साइड से अगर हम बात करें तो रिब्स प्रेजेंट होती है, और लोअर साइड की बात करें तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो प्लीज एक बार पिक्चर बनाइए इस चीज का कि जो हमारा थोरेसिस चैम्बर है वो कैसे बना हुआ है, 4 वॉल से बना हुआ है। जो आगे वाली वॉल है दैट इज मेड बाय स्टर्नम, जो पीछे वाली वॉल है दैट इज मेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और जो लेटरल पार्ट है दैट इज मेड बाय रिब्स, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज मेड बाय डायफ्राम। तो ये कंप्लीट चैम्बर बन गया जिसको हम बोलते हैं थोरेसिस चैम्बर, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक कंडक्टिंग पार्ट, ये याद रखना है बेटा आपको, और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट। सो कंडक्टिंग पार्ट में क्या आता है? नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और उसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई, removing foreign particles from air, humidifying it and bringing it to the body temperature. And the exchange part are alveoli, जहां पर एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है किस चीज का? O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। सो जो एक्सचेंज पार्ट है बेटा उसमें आता है हमारा एल्वेलाई, और जो कंडक्टिंग पार्ट है सिंपली वो ऊपर से लेकर जब तक एल्वेलाई नहीं आ रहा उस पूरे रीजन को हमने क्या नाम दे दिया? कंडक्टिंग पार्ट नाम दे दिया, राइट? नाउ दिस इज द प्रोसेस, यहाँ दिखा रखा है कि गैस एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली बाय लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कैसे? एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन अदर गैसेस कम इनटू द बॉडी थ्रू लंग्स, ये तो हमें क्लियर है। इन द लंग द ऑक्सीजन इज मूव्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरिड थ्रू द बॉडी। नाउ रेड ब्लड सेल कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट it back to the lungs where it leaves the body when we exhale. Now alveoli, where the exchange of oxygen and carbon dioxide occurs in the alveoli. Now ये आपको दिखा रखा है 1 पर ऑक्सीजन, 2 पर पल्मोनरी वेन्यूल। ध्यान रखना बच्चा, पल्मोनरी वेन्यूल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हमने पढ़ा हुआ है पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी आर्ट्रियोल क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शंस थे, प्लीज रिमेंबर, याद रिमाइंड योरसेल्फ, आपने पढ़ा हुआ है ये, राइट? नाउ स्टेप्स क्या हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के? तो पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन। वो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है और CO2 रिच एल्वेलर एयर जो है वो रिलीज्ड आउट होती है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। जो भी O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वेलर मेम्ब्रेन से हो रहा है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। Number 4, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue. And number 5, utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant release of CO2. So these are the steps of respiration. 5 steps are there. बच्चा ये अगर steps आपको थोड़े से अच्छे से clear हो गए तो आपके लिए chapter और easy हो जाएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन हम सिंपल बोलते हैं, O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। फिर जो गैस आया है O2 सपोज जैसे अंदर आया है तो वो कहाँ जाएगा? एल्वेलाई में जाएगा। वहां से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। फिर ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास जाएगा। टिश्यू में जाकर क्या होगा? टिश्यू में जाकर वो हेल्प करेगा कैटाबॉलिक रिएक्शन में। व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन? किसी भी बड़े कंपाउंड का छोटे पीसेस में टूटना इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. So this reaction is called
कैटाबॉलिक रिएक्शन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. बच्चा हम लोग मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो प्लीज, मैंने आपको क्लास 10 में बहुत इजी तरीका बताया था ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने का. देयर आर टू प्रोसेस, एक इनहेलेशन, अनदर वन इज एक्सहेलेशन. बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बताऊंगी कि रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं. उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. अब होता क्या है, सबसे पहले अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनहेलेशन के ड्यूरिंग वो कंट्रैक्ट करती है. उसके कंट्रैक्शन की वजह से रिब्स जो होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं. रिब्स जब आउटवर्ड मूव करता है तो डायफ्राम जो डोम शेप है वो डाउनवर्ड मूव करता है. जब रिब्स आउटवर्ड मूव करेगा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जो जो चैम्बर है, थोरेसिस चैम्बर है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसका प्रेशर कम हो जाएगा. और आपको मालूम है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो मैंने अभी आपको बोला जब वॉल्यूम बढ़ गया थोरेसिस चैम्बर का और प्रेशर कम हो गया तो एयर मूव कहां से करेगी, एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दिस इज इनहेलेशन. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन? नंबर 1, intercostal muscles contract. Number 2, ribs moves outward. Number 3, diaphragm moves downward. Number 4, volume of thoracic chamber increases. Number 5, pressure in thoracic chamber decreases. 6, air moves from high pressure that is outside to low pressure that is inside. इसका उल्टा कर लीजिए एक्सहेलेशन प्रोसेस में. Intercostal muscles relax, ribs moves inward, diaphragm moves to normal position or upward, volume of thoracic cavity decreases, pressure of thoracic cavity increases, air moves from high pressure that is from inside to low pressure that is outside. तो अगर बच्चा ये आपको क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड. नाउ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. कई बार ऐसा होता है कि ब्रीदिंग मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो पहला जो तरीका है उसको ट्रेस आउट करने का दैट इज स्पायरोमीटर. किस लिए काम में आ रहा है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो आपका हो रहा है, ब्रीदिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसको ट्रेस करने के काम में आता है. अब एक टॉपिक आता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. नाउ व्हाट आर दीज? बच्चे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दे रखी हैं जिसको आपको लर्न करना है और इसके बहुत जरूरी है बच्चा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? एक एक करके याद करना और एक करने के बाद जब दूसरा कर रहे हैं आप तो पहले वाले को वापस से रिकॉल करो. मैं एग्जांपल बता रही हूँ. आपने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, फिर आपने IRV पढ़ा, फिर आप जब ERV पढ़ रहे हो तो ERV को लर्न करने से पहले टाइडल वॉल्यूम एंड IRV को दोबारा से रिकॉल कीजिए. ऐसे करके अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आपको सारी की सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज याद हो जाएंगी. नाउ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. जो अभी आप सांस ले रहे हैं या जो आप सांस छोड़ रहे हैं बेटा, वो नॉर्मल जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. कितना होता है हेल्दी मैन में? 500 ml. Number 2, IRV, that is additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration. कई बार हम करते हैं जोर से सांस ले रहे हैं, राइट? तो वो जो जोर से सांस ले रहे हैं दैट इज IRV, 2500 ml to 3000 ml, क्योंकि नॉर्मल में तो 500 ml ही है. नाउ ERV, what is ERV? That is additional volume of air a person can expire by forceful expiration. कई बार हम बोलते हैं ना राहत की सांस आ गया, राइट? तो ERV राहत का सांस कितना है? 1000 ml to 1100 ml. Now residual volume, जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल. ऐसा नहीं है ना आपने ऐसे करा तो आपका पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम जो है गायब हो गया. नहीं, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर रह जाता है, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. दैट इज अगेन 1100 ml to 1200 ml. दैट इज RV. नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC इज TV. TV कितना था? 500 ml.
एंड IRV, तो अपन जैसे IRV हमको दे रखा 2500 ml to 3000 ml, कोई भी आप एक ले लीजिए, आपने लिया 2500, तो टोटल IC कितना हो गया 3000. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दैट इज TV प्लस ERV, अगेन ले लीजिए 500 प्लस 1000 1500. नाउ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दैट इज ERV प्लस RV. हाँ, ERV इज अभी आपने पढ़ा 1000 एंड RV इज दैट इज 1100, हम सपोज ले रहे हैं तो 2100 हो गया. वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कितना वो ले सकता है, तो उसमें आ जाता है ERV 1000 ले लिया, 500 टाइटल वॉल्यूम, IRV दैट इज 2500, तो कितना हो गया 3500 प्लस 500 4000. टोटल लंग कैपेसिटी जिसमें आप सब कुछ प्लस कर रहे हो, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, और वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम एक ही बात है, IRV और वो एक ही चीज है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड इट्स कैपेसिटी, जिसके आपको वो भी याद रखना है कि अमाउंट कितना है, और आपको ये भी याद रखना है कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. So in this video we discuss about this only. In the next one we will discuss about exchange of gases and जैसा मैंने आपको बताया transport of gases, then regulation of respiration and disorder of respiratory system. So for now अभी तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोसीड करेंगे. थैंक